Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing about Marco Polo. He was very famous. So let's just begin with this Marco Polo. So the title of our chapter is Marco Polo, right? The Polos, they were very brave and adventurous. जो Polos होते हैं, Polos community, they are very brave and of course they are very adventurous. And they travel from Venice to China where they were no means of traveling. जहाँ पे कोई भी means नहीं थी traveling करने की. And Venice, it's in San Francisco, Paris, right? And along with the way, they faced many hardships, बहुत problems इनको मिली, and then they reached China. And you have to read this lesson and learn about them, right? So it is difficult to imagine that how hard and dangerous it was to travel from one country to another for 600 or 700 years ago. एक 600 पुरानी, मतलब 600-700 years पहले एक country से दूसरी country जाना, it was very difficult and of course it was very dangerous because at that time there were no passports, no visa and nothing. There was no means of transport also. Men had to travel by overland routes से जाया करते थे लोग. They had to move slowly when they had got the chance, कि अगर उन्हें कोई chance मिल रहा है तो फिर वो धीरे धीरे चल रहे हैं. Villages और towns जो होते थे, they are very far apart, बहुत दूर हुआ करते थे, right? And many persons, they died on the way due to the lack of food and water. In between the way, sometimes when there is a lack of food and water, persons used to die and people had to travel in large groups में travel करते थे, और caravans as they were called. और caravans is a kind of, आप कह सकते हैं, kind of जो houses देखते हैं हम टेंट के, वो otherwise they would have got lost, or otherwise वो lost हो सकते थे. Bands of robbers knew their routes too. कुछ जो चोर चकाड़े वाले लोग होते हैं, चोरी करने वाले लोग भी उनका रास्ता जाना करते थे. They attacked these caravans and looted them. उनको अटैक कर लिया करते थे और उनको लूट करा करते थे. And many travelers, they were killed in the fighting that took place. बीच बीच में ही वो लोग मर जाते थे. Others, they died of hunger and thirst. कुछ लोग भूख से और प्यास से मर जाया करते थे. When everything they had was stolen and taken away. और कभी कभी उन सबकी सारी बिलोंगिंग, सारी चीज़ों को चोरी भी कर लिया करते थे. Now traveling was so dangerous in those days that hardly anyone who went on a long journey, कि कोई बहुत ही कम इक्का दुक्का लॉन्ग जर्नी पे जाया जाता था, was sure of getting home alive, कि उनमें से कोई बहुत कम वापस आएगा अपने घर. Only persons of great courage, they could dare this undertake long journey race, which led to them to strange lands and sometimes took years to complete. कभी कभी बहुत ही रेयर हुआ करता था कि लोग वापस आया करते थे. लॉन्ग जर्नी हुआ करती थी जहाँ पे कभी कभी लोग स्ट्रेंज लैंड से, और समटाइम्स बहुत टाइम लगता था कंप्लीट होने में, राइट? नाउ इन द 13th सेंचुरी में यूरोप जो है, इट वाज हाईली वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट. यूरोप ने ईस्ट के साथ अपना बहुत अच्छा ट्रेड कर लिया था. नाउ इंडिया एंड चाइना, दे वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स. उनके सपनों से भी दूर थी वो कंट्रीज. स्पाइसेस फ्रॉम दी आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, स्पाइसेस जो है साउथ ईस्ट एशिया से, इट कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ गुड प्रॉफिट. मतलब कि केरला वगैरह से अच्छी स्पाइसेस को, मसालों को बेचा जाया कर सकता था विद अच्छा प्रॉफिट. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन, बहुत ही यंग मैन था, हु लिव्ड इन वेनिस इट्स इन इटली. ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स, बहुत ही ज़्यादा अमीर खानदान से बिलोंग करता था. एंड सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट. जो वेनिस सिटी है यूरोप में, उसका अच्छा खासा ट्रेड चलता था किसके साथ? ईस्ट के साथ. 1271 में जिस 17 ईयर ओल्ड, 17 साल का लड़का जिसका नाम मार्को पोलो था, ही स्टार्टेड अ जर्नी. उसने जर्नी स्टार्ट करी चाइना के लिए. एंड देन नोन एज अ कैथरे, उसको क्या बोलते थे? कैथरे विद निकोलो पोलो, जिसके उसके फादर थे, एंड माफियो पोलो हिज अंकल. उन सबके साथ जर्नी स्टार्ट करी. नाउ they travel from Venice to Asia Minor, then they cross the Black Sea and then into Crimea. ये सब जगह हैं. and from there they made their journey across the deserts of, फिर वहाँ से वो पर्शिया और अफगानिस्तान गए, to the highlands of the Pamires. इन सब जगहों पे गए. they cross the road, गोबी डेजर्ट बीच में आया. they finally reach Peking and this journey it took around 4 years, और इसको कवर करने में 4 साल लगे. नाउ टू अस दिस सीम्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी, की बहुत टाइम हो चुका है जर्नी में. बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट, बहुत ही ज़्यादा कम सोचते थे, दैट दे देमसेल्फ दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल. बहुत कम लोग थे जो ये सोचा करते थे. एंड देयर वर मेनी केसेस ऑफ ट्रैवलर्स, बहुत केसेस थे विच इज किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड
और सोल्ड एज स्लेव्स, कभी कभी उन्हें गुलाम के जैसे बेच दिया किया जाता था रास्तों में। द पोलोज दे वर रिसीव्ड एट द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान द हु वाज द रूलर ऑफ दैट वास्ट एम्पायर, राइट। जो पोलोज है दे रिसीव्ड एट द कोर्ट ऑफ दिस खान, इनको यहाँ पे मिले, and this Khan was the ruler of this vast empire. Now with its capital Peking, Kublai Khan welcomed the travelers, उसने travelers को बहुत ही शानदार तरीके से with great kindness उनका वेलकम किया। This Marco Polo set himself the task of learning this Mongol language, उन्होंने लैंग्वेज सीखी। The emperor was so pleased with that he took Marco in his service, मार्को को उसकी सर्विस में लेके आए। कुबलाई खान ट्रस्टेड मार्कोलो ग्रेटली, मार्कोलो की बहुत अच्छी ट्रस्ट किया उस पे, एंड सेंड देम टू फार प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ, अपने बिहाफ पे उसको बहुत दूर जगहों पे भेजा। एंड लेटर दिस पोलो वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी, का गवर्नर बन गया। नाउ आफ्टर 15 years कमिंग टू पैकिंग, जब वापस आए दिस मार्को पोलो आस्क द एम्परर परमिशन टू गो बैक, कि क्या वो वापस जा सकता है अपने घर, बट कुबलाई खान ही रिफ्यूज्ड टू लेट हिम गो ओवर देयर। नाउ दिस कुबलाई खान वांटेड टू सेंड पोलो विद प्रिंसेस, की पोलो अपनी शादी करके जाए प्रिंसेस के साथ, एज सो ही हैज टू एग्री एंड मेड प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी, और जर्नी के बाद वो वापस आएगा। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स न्यूज केम कि कुबलाई खान मर चुके हैं, ही वाज डेड। देयर इज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू द पीकिंग एज ही प्रॉमिस्ड, अब कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। ही एंड हिज फादर अंकल had grown very rich, बहुत अमीर हो चुके हैं। now they returned to Venice after arrived in 1295 के बाद गए। they had been away on their journey for 24 years, उन्होंने 24 साल की जर्नी करी। and the lad of 17, जो 17 साल का बच्चा था जो कि 1275 में अपना घर छोड़ के आ चुका था, now he was 41 when he returned, जब वो 41 years का हुआ तब वो अपने घर में गया। The story is told when Marco Polo landed in Venice, जब वो वेनिस में आए तब ये स्टोरी बताई, because no one recognized them, कोई भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था। सो दे इनवाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू टेक डिनर वन नाइट, कि भाई सबको बुलाया सो दैट दे कैन हैव डिनर। द पोलोज वर वियरिंग द रफ रैग क्लोथ्स, बहुत ही ज्यादा फटे पुराने कपड़े पहने थे, दैट दे वन ऑन देयर जर्नी पे पहने हुए थे। When the guests were all present, सब लोग प्रेजेंट थे, दिस पोलोज दे tore off the seams of their clothes को फाड़ा, and precious stones and jewels they fell from the linings of the clothes बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, उन्होंने उन कपड़ों को उतारा और उसके अंदर क्या थे, बहुत ही ज्यादा गहने थे, राइट, कुछ पत्थर कीमती। देन दे बिलीव दैट वंडर ऑफ पोलो जर्नी एंड वेलकम देम होम, फिर उन्होंने देखा कि ये कितनी अच्छी जर्नी हुई है और फिर उसको घर बुलाया, राइट। बट मार्को पोलो हैड टू फेस ऑफ हार्डशिप स्टिल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करने लगी। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड गुनिया, के बीच में वॉर हो गया। दिस मार्को पोलो वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग सेलिंग शिप्स पे वो सेल कर रहे थे, ही वाज टेकन प्रिजनर। नाउ ही रिमेन, उनको जेल में था, ही रिमेन इन प्रिजन फॉर 3 years। ही डिक्टेटेड अ बुक टू फेलो दी टू he dictated a book to a fellow prisoner, उसने एक बुक दी, and it was made on this journeys, कि वो उसकी जर्नी पे थी। when peace was made after 3 years he was allowed to go home, फिर वो 3 साल बाद अपने घर गया। now Marco Polo has became very famous, बहुत फेमस हो गया। he had written not so much about his own, अपने बारे में इतना नहीं लिखा, अपने adventures, as so many things people and places had he seen, right। he had written about जापान के बारे में लिखा, among अदर प्लेसेस, और प्लेसेस के बारे में, ठीक है। नो वन इन यूरोप हैड हर्ड ऑफ जापान, उससे पहले उन्होंने जापान के बारे में कभी नहीं सुना था, बिकॉज नो वन न्यू दैट इट एग्जिस्टेड, कि जापान भी है। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव द फर्स्ट यूरोपियन who travel right across Asia, जो एशिया में ट्रैवल किया। द पीपल इन यूरोप दे हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ ईस्ट इन दोज डेज, ईस्ट की बहुत कम नॉलेज हुआ करती थी। दे फाउंड इट हार्ड टू believe that much of the Marco Polo had written, जो मार्को पोलो ने लिखा है। few centuries it was thought that the book जो है it was a collection of exaggerations, कुछ सालों तक ऐसा लगा कि पता नहीं बहुत ही घसी पिटी बातें और चीज़ों को exaggerate करके बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। but it was only in the 19th century that facts were verified, फिर 19th century में facts को verify किया गया। travelers ने, scholars ने, they generally found to be true, सबको लगा कि ये सच है। and there were ऑफ कोर्स ऐसी चीजें थी, सर्टेन थिंग्स विच मार्को पोलो हैड ओनली हर्ड, जो हमेशा सुनी थी, बट दोज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट नहीं थी। नाउ मार्को पोलो फायर्ड पीपल फैंसी, की बहुत फैंसी बुक हो गई उसकी बुक। मैन हु वाज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर दे बिगैन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट ऑफ इंडिया, कि आउट ऑफ इंडिया लोग जाएं, एंड चाइना
मेक देयर फॉर्च्यून्स, और चाइना ने उनकी किस्मतों को बदला. मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट. फर्स्ट वर्ड इज डेंजरस मीन्स fearful, overloaded route means pathways, caravan is a group of travelers, and band we all know it's a group of robbers जो चोरी करते हैं. Profit is advantage, merchant are the traders we all know. Desert is an area which is covered with sand, and highland is the tableland, and land which is more higher than nearby land. Lucky means fortunate, and probably means likely. वास्ट एम्पायर मीन्स बहुत बड़ा किंगडम, बिग किंगडम. ट्रस्टेड मीन्स बिलीव, रिफ्यूज मना कर देना, रिकॉग्नाइज किसी को पहचानना. आइडेंटिफाई एंड एडवेंचर मीन्स करेज, एंड वेरीफाइड मीन कंफर्म करना, एंड फॉर्च्यून मीन्स वेल्थ, अच्छी किस्मत होना. मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. First, we'll be doing the oral exercises where we'll be doing all these question answers at our own. Now, moving on to the pick the correct options. This Marco Polo dedicated a book in the jail. War broke out between Venice and what? Venice and Guinea. People had to travel in dash. People had to travel in caravans. Marco Polo started its journey to China with his alone, of course. Right. Moving on to the fill in the blanks. Dash was the ruler of this Peking. It's Kublai Khan. Right. Dash wrote a book in the jail, that is Marco Polo. All these are proper nouns, and of course the blank is starting from the beginning. That's why M is capital and K is capital. Europe valued is dash. Europe जो है value क्या करता था? Trade. Right. And bands of what? Bands of travelers. Moving on to the true and false. Kublai Khan opposed the Buddhism. It's true. India and China, they believe to be rich. It's false. Kublai Khan treated the Polos very badly. I think it's true. Marco Polo had made a prison. Yes, it's true. Right. Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own in your notebooks. So that was all about Marco Polo. Please go through all the word meanings, learn them, and stay blessed. Thank you.